students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So today we are going to go ahead and deal with the last of the lectures of the series based on human health and diseases. Today we are going to be discussing about drug and alcohol abuse. Actually drug और alcohol abuse काफ़ी हद तक related होता है to youngsters like you, right? So it is important that you are aware about this kind of disease or this kind of addiction which generally occurs. You are aware about it, you can deal with it, as well as you can prevent it at your own level, as well as अगर आप अपने friends में इस चीज़ को देखते हो तो. So first of all we should know what exactly is a drug. Well, drug can be any substance other than food which when inhaled, either it is taken orally या फिर it can also be injected, right? तो इन तीनों sources से अगर drugs को लिया जाता है and if it causes a psychological change in the body, then that substance is categorized as drug. Now medicines are also drugs because obviously they also bring about a psychological change in our body. But medicines are beneficial, drugs are beneficial जब तक हम उन्हें एक particular concentration, एक prescribed concentration में लेते हैं. When we start taking drugs or certain substances जो हमारी body को needed नहीं होते हैं and such that we become prone to those drugs or chemicals या फिर हमें उनका habit लग जाता है, then it is termed as addiction and it might lead to a problem. So taking of drugs, it actually depends on two aspects: increasing the concentration of a chemical or increasing the frequency at which the particular chemical is consumed. In that case, it either causes a physical, a social or mental state impairment of the individual, and this is known as drug abuse. If we are to talk about the types of addictive drugs, then well, there are various classes जैसे कि opioids हो गए, they are generally those drugs जो कि pain relief करने में help करते हैं. Tranquilizers are drugs which induce sleep, right? They are anti-anxiety drugs. Sedatives are depressants, they bring down the activity of the entire body. Then there are the stimulants जो कि stimulate करते हैं brain activity को. Hallucinogens होते हैं जो कि thoughts को alter कर देते हैं, perspectives को alter कर देते हैं. Then there are the performance enhancing drugs जो generally athletes वगैरह लेते हैं for increased aggressiveness as well as enhancement of their performance during exercise or during any games. So these are the types of addictive drugs. Let us now look into details of some of these. So first of all, let us look at opioid drugs or opioid narcotics. So opioid drugs, they how do they act? They basically bind to receptors which are present in the brain, as part of central nervous system and as well as in the gastrointestinal tract. तो बेसिकली होता क्या है, जब ये ड्रग्स लेता है कोई इंडिविजुअल तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये इन ड्रग्स के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड दे ओपन अप. आफ्टर अ वाइल द रिसेप्टर्स बिकम सो एग्रेवेटेड कि थोड़े बहुत कॉन्सेंट्रेशन में ये ड्रग अगर दिया भी जाता है इट इज़ नॉट इनफ फॉर द रिसेप्टर्स एंड दे डिमांड मोर एंड दैट इज़ हाउ ड्रग्स का एडिक्शन लग जाता है, हैबिट लग जाता है, राइट. हेरोइन या स्मैक जो होता है ना वो ओपियोइड ही होता है which is formed by diacetylation of morphine. So it is chemically also called diacetyl morphine, right? It is a white odorless bitter crystalline compound जो छोटे छोटे पैकेट्स में तुमने मूवीज में देखा होगा. It is a depressant and slows down bodily functions. So if we are to talk about how these drugs opioids are synthesized, opioids are made, तो जो ओपियम प्लांट होता है पेपरवर सोमनिफेरम उसका जो कैप्सूल होता है यानी कि फ्रूट होता है, जब वो अनराइप होता है तभी उसको उस पर कट्स लगाए जाते हैं एंड उसके जो अंदर का लेटेक्स होता है या मिल्क ऑफ पॉपी जिसको कॉमनली बोला जाता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको रिफाइन करके मॉर्फिन बनता है और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से मिलता है हेरोइन या फिर स्मैक.
नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट hallucinogens और cannabinoids. So cannabinoids जो होते हैं they cause hallucinations, they alter our perception, our thoughts, etc. right? और जो plant responsible होता है in the making of cannabinoid drugs is cannabis sativa. इसको generally hemp plant बोला जाता है. इंडिया में इनफैक्ट ये एक वीट प्लांट है जो कि बहुत ईजिली एज सच ग्रो करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है. सो इस प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को, जैसे लीव हो गया, फ्लावरिंग शूट हो गया, इनफ्लोरेसेंस हो गया, या इवन जो स्टेम और लीव्स में से रेजिन निकलता है, उससे भी अलग अलग कैनाबिनॉइड ड्रग्स जैसे कि मैरुआना, हाशीश, चरस, गांजा, भांग, ये सब बनाए जाते हैं. हाउएवर कैनाबिनॉइड्स की अगर बात करें और इसको कंपेयर करें टू अदर ड्रग्स, ये उतना हार्मफुल नहीं होता है. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी इस पर्टिकुलर ड्रग को लेने की भी, तो द इंडिविजुअल ही माइट शिफ्ट टू ओपियोइड ड्रग्स एंड उसके बाद वो काफ़ी डेंजरस बन जाता है. Again, cannabinoid also, if accompanied by intake of alcohol, can be extremely dangerous. कैनाबिनॉइड्स के अगर स्पेसिफिकली इंटरैक्शन देखें, दे इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट हो सकते हैं. इसके अलावा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से भी ये अब्जॉर्ब होता है. एक्सेस में अगर लेते हैं तो हैलुसिनेशंस कॉज होते हैं. ऑल्सो दे आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन द हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी इसका इफेक्ट होता है. और इनटेक की अगर बात करें, इट कैन ईदर बी स्मोक्ड, दैट इज टेकन बाय इनहेलेशन, और इट कैन बी कंज्यूम्ड ओरली एज वेल. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स विच इज कोका अल्कलॉइड. इसको कॉमन लैंग्वेज में कोकेन, कोक या स्मैक भी बोलते हैं. इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड एरिथ्रोजाइलम कोका. तो एरिथ्रोजाइलम कोका इज एक्चुअली अ साउथ अमेरिकन नेटिव प्लांट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है बहुत सारी और जगहों पे और ग्रो करने लगा है. So coca alkaloid, when it is taken, it interferes with the transport of a neurotransmitter called dopamine. So basically जो normal activity होती है central nervous system की, वो होती है stimulate करना and then going back to normal. तो ये जो particular drug होता है ये stimulate तो करता है, it acts as a stimulant, it has a stimulating action, but ये normal होने नहीं देता है. So it gives a feeling of enhanced energy, activated energy and a feeling of euphoria. Right? Excessive dosage इसका भी can cause a lot of hallucinations. Other plants with hallucinogenic property are धतूरा. इस इनफैक्ट ये बहुत कॉमन होता है, हॉर्सेस को दिया जाता है ड्यूरिंग देयर रेसेस, राइट. एंड देयर इज ऑल्सो एट्रोपा बेलोडोना विच इज अगेन वेरी कॉमन फॉर मेकिंग अदर hallucinogenic chemicals. देन देर आर द मेडिसिनल ड्रग्स. मेडिसिनल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको एक्चुअली या तो पेन किलर्स या फिर सिडेटिव्स या फिर एज सच उनके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ के वजह से दिया जाता है. लेकिन इनका भी अगर एक्सेसिव डोसेज होने लगता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, देन इट अकाउंट्स फॉर ड्रग अब्यूज. So drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, even lysergic acid diethylamide, which is commonly called as LSD, ये एक्चुअली दिए जाते हैं टू पेशेंट्स हु आर कोपिंग विद मेंटल इलनेसेस जैसे इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन हो गया, साइकोसिस वगैरह हो गया, उस केस में दिया जाता है. अगेन इसको भी अब्यूज किया जा सकता है. then obviously it will lead to dangerous side effects. then morphine काफ़ी common है as a sedative, as a pain killer. in fact जो patients surgery के through गए होते हैं उनको morphine काफ़ी हद तक दिया जाता है. again this is also abused by certain people, certain individuals, right. so ये सारे तो drugs हो गए हैं. most of them have medicinal property और कन्वेंशनल टाइम से एज सच रिलीजियस रिचुअल्स के लिए या फिर मेडिसिनल यूज़ के लिए ये बेनिफिट देते आए हैं. लेकिन जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लगते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगते हैं, देन इट अकाउंट्स फॉर सर्टेन डेंजर्स, सर्टेन हार्मफुल इफेक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ ड्रग अब्यूज. मूविंग ऑन टू स्मोकिंग एंड टोबैको. सो स्मोकिंग में जब हम टोबैको का इंटेक करते हैं उसमें भी एक्चुअली बहुत टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच हैव एन एडिक्टिव कैरेक्टरिस्टिक टू देम. लाइक फॉर एग्जांपल निकोटीन एंड अल्कलॉइड इज प्रेजेंट इनसाइड टोबैको. टोबैको एक्चुअली हम लोग गेन भी करते हैं फ्रॉम अ प्लांट विच इज कॉल्ड निकोटियाना टोबैकम. So basically this nicotine, it has a stimulating effect on the nervous conduction as a part of central nervous system. इसके अलावा ये muscles को relax करता है और adrenaline release को भी enhance करता है, stimulate करता है, जिसकी वजह से there is an increase in blood pressure, rise in blood pressure as well as our heart rate.
बात आती है अगर कंज्यूमिंग की, ये कैसे इनटेक किया जा सकता है। वेल, इट कैन बी स्मोक्ड, इट कैन बी च्यूड। जो पान मसाले के पैकेट्स आते हैं उनमें एक्चुअली ओरल इंजेक्शन के थ्रू उनको इनटेक किया जाता है। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्नफ. Smoking is actually associated with a lot of problems. It can lead to various cancers जैसे lung cancer हो गया, oral cancer as you can see here in the picture also. It can lead to drastic effects as part of cancer, right? It can obviously be life threatening. It can lead to several respiratory disorders जैसे कि bronchitis, emphysema. It can lead to coronary artery disease and also cause gastric ulcers. मतलब हमारे पेट में digestive system में ulcers भी cause कर सकता है. Smoking, amongst other chemicals that tobacco has, it also has carbon monoxide. तो स्मोकिंग ये करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को एज सच हमारे सिस्टम में इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ऑफ विच यू ऑलरेडी नो कि आरबीसीज जो होते हैं ना, दे हैव मोर एफिनिटी फॉर बाइंडिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड. तो वो आरबीसीज ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करने लगते हैं. द हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसीज, इट स्टार्ट्स टू बाइंड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जाहिर सी बात है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स ऑल्सो, राइट. सो एडवर्सली एज सच हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन को, हमारी ब्रीदिंग को टोबैको या फिर स्मोकिंग इफेक्ट करता है. Then what is adolescence and how it is related with drug or alcohol abuse? Well, you people are all adolescents. Adolescence जो होता है ना, वो interlinking bridge होता है between childhood and adulthood. तो basically इसमें आते हैं सारे teenage years. Teenage years between 12 to 18, 12 to 19 years. और इस टाइम पे बहुत सारे behavioral changes, bodily changes, physical changes, psychological changes, emotional changes एक individual को झेलने पड़ते हैं, या एक इंडिविजुअल, एक एडोलेसेंट उनके थ्रू जाता है. सो दीज आर टाइम्स जब ड्रग या अल्कोहल अब्यूज बहुत कॉमनली एज सच देखा गया है कि इट मे स्ट्राइक एट एन एडोलेसेंट एज. तो रीजंस क्या होते हैं जनरली ड्रग अब्यूज के? इफ द एडोलेसेंट इज एसोसिएटेड विद ड्रग एडिक्ट्स, जनरली ये देखा जाता है कि बड़े लोगों से दोस्ती हो जाती है एडोलेसेंट्स की, टीनेजर्स की. एंड इफ दे आर एसोसिएटेड विद ड्रग अब्यूज, देन द एडोलेसेंट ऑल्सो, इन ऑर्डर टू बिकम, या परसेप्शन होता है कि इट इज़ हाईली प्रोग्रेसिव, इट इज़ कूल. तो उस चक्कर में द एडोलेसेंट ऑल्सो बिकम्स अ ड्रग अब्यूजर. देन क्यूरियोसिटी, एडवेंचर या एक्साइटमेंट, कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, तो उस लिए भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि एडोलेसेंट दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग अब्यूज. देन इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, उसका कंटिन्यूस यूज करना स्टार्ट हो जाता है. इट ऑल्सो ऑब्वियसली गिव्स अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज एक्चुअली अगेन परसीव्ड इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, इन द माइंड ऑफ द एडोलेसेंट. परसेप्शन ऑफ इट बीइंग कूल एंड प्रोग्रेसिव, लाइक आई सेड, इवन हमारी जो मूवीज होती हैं, इंटरनेट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, यही सब प्रमोट ही करती हैं कि यही परसेप्शन एज सच प्रमोट होता है एडोलेसेंट के माइंड में. Then also the adolescent is put under undue pressure relating to academics, to excel in examinations. ये चीज़ भी उसको ढकेल सकती है टूवर्ड्स अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़. एंड ऑफ कोर्स अगर फैमिली स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, या फिर अनसपोर्टिव फैमिली है, पीयर प्रेशर है वगैरह, उन रीजंस की वजह से भी एन एडोलेसेंट कैन गो इनटू ड्रग अब्यूज़. Now, what are the warning signs if you are to look for कि अगर कोई person, he or she has fallen into that trap? How can you look through? How can you prevent? या आप क्या steps ले सकते हो towards curing that particular person? You can look for certain warning signs, जैसे a drop in academic performance, absence from his school or college, बिना किसी reason के absent होना, या फिर घर से निकलना, स्कूल तक ना पहुंचना, ये रीज़न हो सकता है. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ रखने में कोई इंटरेस्ट ना होना, डिप्रेशन होना, फटीग होना, आइसोलेट करना अपने आप को, लोनलीनेस, अग्रेसिवनेस इन बिहेवियर, रिबेलियस बिहेवियर, मोर वायलेंट बिहेवियर, all these can be warning signs. Then relationships deteriorate hona with the family members also, with friends also. Then loss of interest in hobbies, जो actually adolescent को या individual को पसंद था, उससे interest हटना, this is also a warning sign of drug abuse. Then sleeping patterns change hona, eating habits change hona, loss of appetite, loss of weight can also be other signs and symptoms which can be related to drug abuse.
Now, what is addiction and dependence? See, the physical and mental dependence on drugs या अल्कोहल या फिर स्मोकिंग या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो कि ये ड्रग्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उन पर फिजिकल या मेंटल डिपेंडेंस हो जाना ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज एन addiction. And this particular person or individual जिसमें ये टेंडेंसी देखी जाती है, he is known as an addict. सो डिपेंडेंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या एक पर्टिकुलर ड्रग का कंज्यूम करना एक फॉर्म ऑफ हैबिट बन जाता है, और जब ये ड्रग नहीं मिलती है द पर्सन में शो विड्रॉल सिम्टम्स. विड्रॉल सिम्टम्स यानी कि ऐसे सिम्टम्स या ऐसा सिंड्रोम जो एक्चुअली दिखने को मिलता है जब पर्सन को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो ड्रग्स नहीं मिलते हैं, राइट. अब देखो होता क्या है ना, फर्स्ट टाइम भी अगर कोई चीज़ ट्राई करने वाली होती है तो रिसेप्टर्स दे बिकम एक्टिवेटेड, एंड बार बार वही चीज़ वही ड्रग्स अगर बार बार यूज़ होते हैं ना तो रिसेप्टर्स उन छोटी कॉन्सेंट्रेशन से एज सच एक्टिवेट नहीं होते. द रिसेप्टर्स बिगेन टू रिस्पॉन्ड टू ओनली हायर डोजेस, और उसी वजह से ड्रग एडिक्ट्स को और ज़्यादा डोजेस लेने पड़ते हैं, right. So this is a kind of dependence, this is a kind of addiction which can actually be harmful to a particular individual. और ये withdrawal symptoms they can range from anxiety, they can range from shakiness and nausea, sweating, to even extreme symptoms which can even be lethal or fatal for the individual. Now what are the effects of drug and alcohol abuse? Well, रोज लेने से होता क्या है, reckless behavior दिखता है, violence दिखता है, vandalism दिखता है, लेकिन अगर excessive dosage होने लगता है तो और भी ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे सेरिब्रल हैमरेज. अगर प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो इट कैन हैव एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. देन हार्ट रिलेटेड डिजीज जैसे हार्ट फेलियर, the extremes of CAD, cardiovascular diseases, etc. Then क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इंट्रावीनसली लिए जाते हैं, तो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो कि यूज नीडल्स और यूज सिरिंजेस से ये ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर, और वो उनकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ा देता है टू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी विच कैन एक्चुअली बी फेटल, राइट. देन लिवर सिरहोसिस, जो अल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं उनके लिवर का डिसफंक्शन होने लगता है, इम्पेयरमेंट होने लगता है नॉर्मल फंक्शनिंग का, उसको बोलते हैं लिवर सिरहोसिस, एंड लिवर एज सच डैमेज होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है. देन इट कैन ऑब्वियसली लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर्स ऑल्सो, एंड अनदर एक्सट्रीम कंडीशन कैन बी द कोमा, जब ओवरडोज से कोमा में चले जाते हैं इंडिविजुअल्स एंड दे आर ऑब्वियसली नॉट एबल टू रिवाइव बैक. देन देयर आर ऑल्सो सर्टेन अदर ड्रग्स जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स अब्यूज करते हैं टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट, टू बिल्ड अप देयर मसल, बल्की करने के लिए अपने मसल्स को, अलर्ट रहने के लिए. These may also have various side effects. ये drugs होते हैं जैसे narcotic analgesics हो गए या फिर anabolic steroids for that matter. There are certain hormones also which may be taken to perform to enhance the performance. अब time being के लिए तो ये performance enhance कर देता है, but again they have a lot of side effects. For example, male में अगर बात करें, men में it shows baldness, it shows headache, development of breast which is actually a feminine characteristic. प्रोस्टेट्स का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, जबकि टेस्टिकल्स का साइज डिक्रीज होने लगता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, राइट. अगर बात करें विमेन की, तो women if they start taking these drugs, these hormones or anabolic steroids, they start to show masculinization, मतलब appearance of male characteristics, जैसे कि breast size reduce होना, clitoris का size increase होना, facial या body hair का increase हो जाना, वॉइस का बहुत डीपन हो जाना, हस्की होर्स हो जाना वॉइस का, या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होने लगना, इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट. दोनों में ही मेल्स और फीमेल्स में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स देखे गए हैं जो कि दोनों में आकर करते हैं, इंक्लूडिंग एक्ने ऑन द फेस, लिवर डिसफंक्शन, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन, देन जॉइंट्स में एक होना, नॉशिया होना, ब्लोटिंग होना, इम्पोटेंस इज वन कैरेक्टरिस्टिक विच इज सीन इन बोथ फीमेल्स एंड मेल्स. देन रिलेटेड टू हार्ट ऑल्सो, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना या फिर हार्ट डिजीजेज रिलेटेड टू ब्लड सच एज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स और स्ट्रोक. Then another is that of aggressive behavior, violence. All this also is shown by people who take excessive anabolic steroids. Next we move on to prevention and control.
So how can we prevent a person from taking drugs, as well as अगर वो ड्रग के विशियस सर्कल में, ड्रग अब्यूज के विशियस सर्कल में ऑलरेडी जा चुका है, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? Well, let us focus on these points. So avoid undue peer pressure. See, all of the individuals are different, so ये चीज़ recognize करना as well as space देना एक individual को, एक teenager को to nurture at his own speed, और दूसरों से कंपेयर ना करना, पीयर्स से कंपेयर ना करना, एज वेल एज पीयर प्रेशर जो है उसको मिनिमाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन एजुकेशन एंड काउंसलिंग कैन बी डन बाय एनी वन एक्चुअली, starting from peers जो close friends हैं, even seeking help from parents for that matter is possible. So again, awareness about all of this drug abuse और ये कैसे adversely impact कर सकता है एक individual को is extremely important. Then of course looking for danger signs. So we have already discussed about so many danger signs जो warning signs होते हैं, जो actually हम भी notice कर सकते हैं and we can notify the parents or any help which may be present for the individual. So ये भी बहुत ज़रूरी है. As well as if some person has fallen into the trap of drug abuse, then he can go in to expert psychiatrist, psychologist, he can seek medical help, एंड ही कैन इवन गो टू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो कि अब बहुत कॉमन हो गए हैं. तो अगर एफर्ट्स लगाए जाएंगे, अगर विल पावर होगी इंडिविजुअल के अंदर, इफ ही इज गिवन द राइट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, he might be able to revive from that kind of quagmire and be able to lead a normal life. And with this, we come to the end of this particular lecture as well as this chapter. Now, all you need to do is revise all this, do the practice questions. We'll meet again in the next class. Till then, thank you. Stay tuned.